जो नेक्स्ट एक्चुअली क्वेश्चन होने वाला था वो इसी से टाइप होता है, टेकिंग ऋषभ पंत एज एन एग्जाम्पल और फिर और प्लेयर्स पे भी एक्सपैंड करते हैं. कितना रोल इन योर एक्सपीरियंस और जो आपकी नॉलेज है डू यू थिंक कि पीआर का होता है इन क्रिएटिंग अ सर्टेन इमेज ऑफ अ प्लेयर, एन एथलीट इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, एंड वो कितना फिर अफेक्ट करता है उसके ओवरऑल सिलेक्शन पे? उस साइड को अगर हम एक्सप्लोर करें, दिस इज ऑल्सो नॉट द वेरी डर्टी साइड ऑफ क्रिकेट. या अंडरस्टूड. हाँ, उस पर क्या लगता है? So I would say if you pick up a particular cricketer in India right now, no matter how good his PR is, his performances has to back his selection or progress. An example I would say Riyan Parag. ठीक है, 3-4 साल से ही वॉज लाइक दैट गाय जो लाइव स्ट्रीम्स ऑफ वीडियो गेम्स करता था. ही यूज्ड टू नॉट परफॉर्म वेरी वेल. उसका PR तब भी था, बट दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ PR. नाउ दैट ही इज स्टार्टिंग टू परफॉर्म, his PR is still, I don't know if the PR team has changed for Riyan Parag, but the way you perceive a player, वो काफ़ी चेंज हो जाता है. So I would say yes, PR plays an important role, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि इट आइदर मेक्स और ब्रेक्स अ पर्सन्स करियर. पता है ये नहीं आप लोग, मैं ये कह रहा था एक्चुअली, जो ये पॉइंट तो 100% वैलिड है और मैं सबसे लड़ता भी हूँ पब्लिकली जब मिलता हूँ कि यार आप ऐसे डिसरिगार्ड नहीं कर सकते किसी की मेहनत को कह के कि ये परफॉर्म नहीं कर रहा सिर्फ PR की वजह से आया है. मुझे लगता है लोगों का मेन प्रॉब्लम तब होती है व्हेन देयर आर टू गाइज, जैसे मान लो 2 विकेट कीपर हैं एंड दोनों एक पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं बिकॉज टीम में एक ही विकेट कीपर होगा. एंड तब फिर वो PR का रोल आता है कि अच्छा ये दोनों परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं, शायद दोनों सेम प्रोफाइल के भी बंदे हैं, बट हम चूज शायद उसको करेंगे जो ज़्यादा फैंस को मैच टीवी पे दिखाने के लिए TRP लेके आता है. आई थिंक तब वो लाइक फर्स्ट बेसिक प्रायोरिटी तो परफॉर्मेंस है ही. ऑन टॉप ऑफ दैट इफ यू हैव गुड PR इट ऑलवेज हेल्प्स. कई लोगों का ऐसा मानना है, which is why it gets very ugly. जैसे अभी एक फेमस चल रहा है शुभमन गिल वर्सेस ऋतुराज गायकवाड़, बहुत फेमस चल रहा है. Don't you think कि in your experience it has a role to play? As things stand, today is 8th September 2024 on the date of recording. Shubman Gill is way ahead of Ruturaj Gaikwad right now. You're the In second terms guy to of say PR this. or his ability also. In terms of everything, I'll give you a good example. We live in Delhi. Yesterday I went to DLF Select City, Saket. Just by the way, you will get a lot of abuses in the comment. आजकल ये पॉपुलर नोशन है कि अगर आप गिल को सपोर्ट करो तो आपको गाली पड़ेगी. स्पेसिफिकली हमारे चैनल पे आप गिल की बात कर दो तो उसका इनडायरेक्टली मतलब है कि आप गायकवाड़ को गाली दे रहे हो. I mean, okay, then I'll choose my words carefully. But whatever, मैं वहाँ पे गया and there were at least 4 different brands जो I saw with Shubman Gill's face on it. Okay. And apart from Shubman Gill, the only other cricketers I saw with their faces in brands was Kohli or I think that's about it. So, and in terms of positioning, Gill and Kohli right now are among the top Indian cricketers right now, you know. Plus, I would say again at the end of the day, Virat Kohli, of course, his performances were second to no one, but he had that aura. Yeah, he had that ki bhai smart hai, handsome hai, he could, and if you pick up Shubman Gill's interviews from 4 years ago, he could hardly speak. Bro, I think it's still kind of. Yeah, I think it's still kind of that, you know. वो देख के लगता है कि हाँ भाई अभी he has a long way to go, but at least it has improved. 100%. So, I mean, let alone Shubman Gill versus Gaikwad. Shubman Gill versus most other cricketers right now, he's right. And I would not say that he's been handed a silver spoon and all. He has worked his way up. He has a entire story of how his father shifted to Chandigarh in 2007 for his cricket and all. It's good. But Shubman Gill right now, it is his, मुझे लगता है he is the next big thing in cricket. People say that he is already become the thing that he wants to be in cricket. But जैसे in T20, last year he performed very well in the IPL 2023. उसके बाद से नहीं हो रही. उसके बाद से. But it's okay. I mean, I feel let's cut him some slack. He's Shubman Gill and he's not the second Virat Kohli. So to come back to a story, I feel Gaikwad is a good player. But in comparison, if you choose one, I think Gill has many reasons to be selected ahead of Gaikwad. पता है, मतलब just to play the devil's advocate. Yeah. अभी लोग क्या कमेंट में कहेंगे कि जो एग्जाम्पल
जो द एग्जांपल दैट यू यूज्ड वाज बेसिकली कि शुभमन गिल के जैसे इतने सारे पोस्टर्स, इतने सारे ब्रांड्स एसोसिएटेड हैं, ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग आफ्टर विराट कोहली, बिकॉज अपैरेंटली उनकी जो पीआर टीम भी है, मैनेजर्स वगैरह सब सेम है, सेम एजेंसी के थ्रू, व्हिच इज व्हाई इफ यू नोटिस विराट कोहली इज द किंग एंड शुभमन गिल इज द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट. तो वो मार्केटिंग वैसे करी जा रही है. करेक्ट. एंड देन पीपल वुड आर्ग्यू कि ये वही तो इसी चीज से अगेंस्ट हम बोल रहे हैं कि ये जो मार्केटिंग करी जा रही है, जो पीआर है उसकी, इसकी वजह से परहैप्स ही इज गेटिंग एन एज ओवर ऋतुराज गायकवाड़. मुझे भी पर्सनली लगता है कि ही हैज अ हायर एबिलिटी सीलिंग देन ऋतुराज गायकवाड़, मैं भी अग्री करता हूँ. बट अगर लोग ये कहेंगे कि जैसे सब्जेक्टिव, राइट, सब लोग नहीं मानेंगे ये चीज. सब कुछ लोग कहेंगे कि ऋतुराज गायकवाड़ इज अ बेटर प्लेयर विद मोर एबिलिटी, एंड वो सब्जेक्टिविटी सबको अपनी प्यारी होती है. तो तब वो ये आर्गुमेंट लेके आएंगे ना, लेकिन फिर कि आप बेसिकली फिर पीआर की वजह से सेलेक्ट कर रहे हो बिकॉज उसका फेस इतना विजिबल है, उसकी पर्सनालिटी पे काम करा जा रहा है. कोई इंसान इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था, अब वो बोलने का ट्राई कर रहा है. आई एम श्योर इन 2-3 years he will be speaking fluent English as well. टोनालिटी वॉइस की सब इम्प्रूव कर दी. No, so what I think is personally, आप जो ऋतुराज, जैसे I'll give you an example. I remember 10 years ago, people used to give lots of gaaliyan to Rohit Sharma during his early days in India. 100%. Everyone used to talk about how people used to talk about भाई क्यों इसको हम इतना मौका दे. That time he was young and all. I feel and जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले एक आईपीएल टीम के बारे में भी बोला कि डिसीजन कोई भी हो, यू नीड टू स्टिक टू इट. सिमिलर टू प्लेयर्स, आई नो इट्स हार्ड. आई मीन sometimes at the top level of Indian cricket you might not choose the best Indian cricketers. Someone might perform better than the other, but more or less Shubman Gill deserves his chance. 800 run mare in an IPL season. He's part of a IPL winning team. He has scored triple centuries in first class cricket. He has scored a century for India in T20 cricket. So even if it takes a bit long to adjust, he deserves that opportunity. Yeah. Please. I mean, I just want to end by saying, does Gaikwad also deserve that opportunity? Maybe yes. But the day Gaikwad exceeds everything in terms of performance that Gill has done till date, that's when probably the tipping point changes कि भाई लोग बोलेंगे क्यों. वो Gaikwad ने अभी तक नहीं किया है. I feel ऑस्ट्रेलिया में नहीं, वो फाइनल में गाबा में रन मारे हैं, सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप के नहीं रन मारे हैं. Gaikwad has not, मतलब अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली, एंड प्लस गिल ने जब मिली तो कुछ तो करके दिया है. आई थिंक अल्टीमेटली टू रीच अ सर्टेन पॉइंट आपको वो एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस चाहिए होती है. बट फिर एकदम टॉप लेवल पे आप कैसे और ऊपर मूव कर सकते हो, उसमें ऑब्वियसली परफॉर्मेंस मैटर करेगी, बट पीआर डज हैव अ रोल टू प्ले. क्योंकि पता है, वही मेरा पर्पस सिर्फ इस कॉन्वर्सेशन को गिल या गायकवाड़ तक रिस्ट्रिक्ट करने का नहीं है. जैसे भी हमने पंत की बात करी, मुझे लगता है कुछ ऐसे 100 साल में 2-3 ऐसे बंदे आते हैं जो एक्सेप्शंस होते हैं इस चीज को लेके. जैसे आई थिंक सचिन तेंदुलकर इज एन एक्सेप्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा मार्केटेबल फेस या मार्केटेबल पर्सनैलिटी नहीं थी, बट बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस एंड हिज स्टोरी, कि एक बच्चा आपके सामने टीवी पे 16 साल की उम्र से बड़ा होते हुए दिख रहा है आपको, ही रेजोनेटेड विद द कंट्री सो वेल कि एक वो ग्रोइंग इंडिया का नैरेटिव ग्रोइंग सचिन के साथ एसोसिएट हो गया था. सिमिलरली कुड आर्ग्यू फुटबॉल में मेसी का बहुत हद तक लोग कहते हैं कि रोनाल्डो हैज अ वेरी मार्केटेबल फेस, वेरी मार्केटेबल पर्सनैलिटी, ग्रेट पीआर. मेसी by sheer performances made his way through, and then eventually PR भी आ गई फिर साथ में, of course. बट आई थिंक जैसे संजू सैमसन का एग्जांपल ले हम लोग, चेतन शर्मा का आई थिंक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसमें उसने कहा था ये. आर यू अवेयर ऑफ दिस? Yeah, I think I've heard of something like तो this. चेतन शर्मा इस टाइम, ये 2021 के टाइम की बात है. उस टाइम पे ही वाज द चीफ सेलेक्टर ऑफ इंडियन टीम. 21 में होता? अच्छा, हाँ, आई थिंक 21 में 3 साल हो गए. जैसे अजीत अग्रकर अभी है, राइट? Yes. और उनका एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसमें वो कैमरा पता नहीं था उसको कैमरा में शूट हो रहा है सब. Okay. उसने ये बोला कि संजू सैमसन का एग्जांपल लेते हुए कि संजू सैमसन के को जब भी हम सेलेक्ट नहीं करते हैं, सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा गालियां पड़ती हैं हमें कि हम सेलेक्टर्स प्रेशर फील करते हैं उसको सेलेक्ट करने का. Yeah. तो अगर ये चीफ सेलेक्टर ऑफ द कंट्री बोल रहा है, आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ हद तक तो पीआर का हाथ होता ही होगा. मतलब एक सटल, एक सबकॉन्शियस प्रेशर बनाने में इज व्हाट आई फील. No, fair point. Absolutely. But at the same point, I feel that selectors, head coaches of cricket teams, especially international teams, जहाँ उससे बड़ा level नहीं है, you have to be very strong-willed. लोग गाली तो देंगे. I was reading Alex Ferguson's autobiography, and he has written 2 books, my autobiography and another book called Leading. So he mentioned that at all times, no matter what we did, media had a certain complaint against us. And of course, at that time, PR wasn't a very active thing. So
मैं एक चीज़ जो बोलना चाहता था, आपने सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लिया. सचिन तेंदुलकर's growth career trajectory coincided with also how the Indian middle class had TVs in their homes. Fair. In 90s. That's one of the things that I had read, that he was the first Indian cricketer who performed so well and was so easily accessible than ever before. 100%. सुनील गावस्कर वो जो 1971 के ओपनिंग सीरीज में, आई सी मैनी सुनील गावस्कर बुक्स हियर एज वेल, आप लोगों को पता होगा, उनका फर्स्ट सीरीज में ही वेंट टू वेस्ट इंडीज, स्कोर्ड 771 रन्स. इट इज प्रोबेबली मोर डिफिकल्ट देन एनीथिंग दैट तेंदुलकर हैज एवर डन. जयसवाल यशस्वी जैसा अभी रिकॉर्ड तोड़ने वाला था इंग्लैंड की सीरीज में 5 टेस्ट मैचेस में. इवन आई थिंक ही फेल्ड टू नहीं कर पाया. Yeah, दैट्स हाउ क्रेजी इट वाज. so it's very crazy, but because that time the medium to communicate to the audiences were so limited कि वो नहीं आता. सचिन तेंदुलकर that played a role, and in the last 10 years of course PR plays a role. And I feel जो हम अभी बैठ के before the recording of the podcast जो हम ecosystem, Indian ecosystem की बात कर रहे थे, these kinds of ancillary services काफ़ी ज़्यादा improve करेंगी in the next 10 years in India. Something जैसे मैं बात कर रहा था that the society always wants something new. In sports, I always feel after every 2-3 years, the fans will want something new. So PR won't be an easy job because you would, no matter who you are, fans want something new at all times. So of course, I would end the entire PR debate by saying that it is an initial push, but at the end of the day, it can only take you till a certain point. After that, there are so many uncontrollables and performances that regard it. Firstly भाई यही होता है पीआर का काम सबसे, softening the blow. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.